Lockdown period, when I'm engrossed in the online counseling session for anxiety and depression, a father called me up around 3 p.m. and told me, I need a counseling session for my daughter of 17 years old. How can I help her, sir? She is studying in Mumbai 12th Science और आकाश कोचिंग भी ज्वाइन किया है फॉर नीट प्रिपरेशन, लेकिन लॉकडाउन के चलते जब से घर पहुंची है तब से पढ़ाई का नाम और निशान नहीं। पूरे समय टीवी है, मोबाइल है, टिकटॉक पे रहती है या उसके छोटे भाई के साथ खेलती रहती है। पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, ना उसकी मम्मी की मदद करती है। हम पति पत्नी उसको इतना समझाते हैं, कभी कभी तो हमें डांट भी लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी 11-12 बजे तक सोती रहती है, रात को 2 बजे तक जागती रहती है, पता नहीं कौन सी वेब सीरीज देखती रहती है। सिर्फ अभी आकाश की जो कोचिंग चालू हो गई है ऑनलाइन, बस उतनी देर वो बैठती है, उसके बाद तो बुक को हाथ ही नहीं लगाती। हमें समझ में नहीं आता समय कैसा निकला जा रहा है, ये बच्चे कब समझेंगे। कैन यू टेल मी सर, preparation for the NEET is her decision or yours? It's entirely hers, ma'am. So can you tell me, TVSCS में उसके रिजल्ट्स कैसे थे? 9th में she got 85, 10th में 93% and she stopped in the school, and 11th में 80%. बट मैम शी इज सो टैलेंटेड। वो पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन, ड्राइंग, पेंटिंग में इतनी ज़बरदस्त है, उसके बहुत सारे उसने अवार्ड्स भी जीते हैं। वो जितनी टैलेंटेड है ना, उतनी मेहनत वो करती नहीं है। यदि करे ना तो क्या से क्या कर ले। इफ यू अलाउ, कैन आई टॉक टू हर एट 5 p.m. सर? Oh sure ma'am. 5 o'clock, the girl called me up, and after the initial formal conversation, I told her, I came to know that you're very good in sports and art, and you won so many medals and awards also for that, and I wonder if you can tell me something more about that. And she started describing everything in detail about competitions, awards and prizes so excitedly. And then I told, wow, that's great. If I'm not wrong, I'm talking to a girl who is very passionate, disciplined, focused and an achiever also. Am I right? Yes, ma'am. I also came to know you're good in academics, is it? Yeah, true, ma'am. But last year I could not perform well in exams. But what happened in SSC when you topped in the school with 93%? Oh my God, it was just awesome. When I told this to my mom, she literally started crying and my dad couldn't resist his tears. And मेरे फ्रेंड्स तो पागल हो गए थे। उन्होंने रात को 12 बजे मुझे सरप्राइज पार्टी दी, एंड माय प्रिंसिपल मैम, शेट्टी मैम, उस दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस लेके गई, ड्रॉर खोला और उसमें से अपनी फेवरेट पेन निकाल के मुझे गिफ्ट किया और मुझे ब्लेस किया। You are the proud of my school, and I cannot tell you in the words how did I feel that time. Sounds so great. So what are your plans for this year? This year, so I've decided to crack the NEET and get admission into my favorite medical college. So you must be gearing up for the exam of 2021. No, ma'am. I don't know, but I don't feel like studying these days. मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आता, कंसंट्रेशन नहीं होता मेरा, रात को भी नींद नहीं आती है, मैं बहुत लेट सोती हूँ, फिर सुबह देर तक उठती हूँ, तो फिर मामा डैडी बहुत गुस्सा करते हैं। मैं पढ़ने भी बैठती हूँ तो मैं फोकस ही नहीं कर पाती हूँ, इधर उधर की बातें याद आती है। मतलब नथिंग इज़ नॉर्मल। एक तो लॉकडाउन की वजह से ना हम लोग फ्रेंड्स लोग मिल पाते हैं, पर लाइफ ऐसी हो गई ना कि कुछ समझ ही नहीं आता। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। और इसलिए क्या करती हूँ, फिर मैं टीवी देखती रहती हूँ, अपने भाई के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, फिर मैं मोबाइल में लगी रहती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूँ। मैं चाहती हूँ करना, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। या यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, because it's a sudden shift in your routine and it's very tough to deal with it. But as you have already decided a wonderful target for 2021, your favorite medical college, so let's experiment with it for 5 days. You just try to do that, and if any kind of problem is there, just let me know. Are you ready for that? Yes, ma'am.
So if you decide for some pleasurable and wonderful destination or goal, your journey should also be pleasurable. Being a meritorious student throughout, I can tell you something about success. Success, just you can visualize, it's like a table which has 4 pillars. Number 1 is your mindset, is your state. Number 2 is your outcome. If the outcome is there all the time in front of you, you cannot get distracted by anything. Number 3 is your strategy. Strategy means every tiny step must be correct. If the steps are correct, then nobody can stop you to reach to your goal. And fourth is the action. If everything is ready and you're not taking the action, means you are just watching a dream only. Let me explain you something about the 4 pillars. Pillar number 1 is the state. State means very powerful, positive, resourceful mindset. If before starting any work, if your mindset is very powerful, it means the corresponding behavior is going to be very powerful, and so is the result. But somehow your mindset is very low, very down before starting any work, it means your corresponding behavior is also going to be of low quality, and so is the result. So what is the trigger? Trigger means before starting any work, my mindset must be very high quality. And how can we do that? It's only 2 ways. Way number 1, माइंड का काम है सिर्फ सोचना. सो वाई कैन नॉट आई थिंक ग्रेट अबाउट माई सेल्फ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट लेट मी स्टार्ट, लेट मी बिगिन विद दैट. लाइक आई एम स्मार्ट, I am confident, my focus, energy is improving every day, my grasping is superb, I love my books, I love to be a doctor, and the whole universe is waiting to celebrate my success. And if you do it regularly, believe it or not, first it starts happening over here and then manifesting outside. 2. Way number 2. Anything which makes you happy and you find it so pleasurable, do it continuously with full energy, full force, 40 minutes. Might be possible, it could be dance or music or Zumba or power walk or sports activity or card game or board game or singing, whatever you like. You just do it because all the scientific research is saying any information is associated with happy emotion turns out into a long-term memory. It means कम मेहनत और रिजल्ट ज़्यादा. इसका मतलब हमेशा हमारा माइंडसेट हाई लेवल पे होना ही चाहिए. दैट इज योर स्टेट. पिलर नंबर 2 is the outcome. Outcome means result. Before starting any work, your outcome must be clear in front of your eyes in the form of pictures, sounds and feelings. I can tell you from my example, when I was in 12th standard, उस समय मेरा सिर्फ एक ही सपना होता था right from the beginning till end, कि उस समय जब कोई मैरिट में आता था तो सुबह 6 बजे घर पे प्रेस से कॉल आता था कि हम आपकी बेटी का इंटरव्यू लेने आए हैं क्योंकि आपकी बेटी मैरिट में आई है. एंड आई कुड विजुअलाइज एवरी डे कि मेरे पापा ने जोर से स्क्रीम किया, सब लोग आए, सब ने मुझे बहुत प्यार किया, और फिर दिन भर फोन कॉल्स, लोगों का मिलना जुलना, और मेरा इंटरव्यू हुआ एंड नेक्स्ट डे पेपर में आया. दैट वॉज माई ड्रीम एवरी डे एंड यू कैन नॉट बिलीव एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. सो रिमेंबर दैट it works as if model. If you have already achieved and now you are in that state, it is going to be manifested 100%. Pillar number 3 is strategy. Strategy works on the principle, if one can do, anyone can do. And if you are able to crack the strategy of a successful person, it means the next successful person can be you. And here we are totally focused on the studies. It means if you are able to follow certain strategies, we are able to crack the deal. How? Number 1, हमारा स्टडी का जो शेड्यूल है वो 30 to 40 minutes at the max in one slot ही होना चाहिए, because scientific research is again saying
25 to 30 मिनट्स के बाद आपका अटेंशन और रिटेंशन दोनों ही चला जाता है, तो उसके बाद आप सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपका पढ़ाई का स्लॉट ओनली 30 to 40 मिनट्स इन वन सब्जेक्ट, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। और ब्रेक के बाद व्हेन यू आर अगेन सिटिंग फॉर द स्टडीज, इट मीन्स यू चेंज द सब्जेक्ट, बिकॉज आपका ब्रेन हमेशा नई नई इंफॉर्मेशन मांगता है ताकि वो फ्रेश रह सके। एंड ब्रेक मीन्स व्हाट? स्ट्रेचिंग कर लो, किचन में जाके कुछ खा लो, पानी पी लो, थोड़ा सा गप्पे मार लो, एक गाना सुन लो। दिस शुड बी योर ब्रेक टाइम। और यदि ऐसे स्लॉट्स, छोटे छोटे स्लॉट्स में आप पढ़ाई करते हैं, एवरी टाइम यू आर चेंजिंग द सब्जेक्ट, मीन्स यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट ऑल्सो। Number 2, scientific research says primacy effect on recency effect. प्राइमेसी इफेक्ट मीन्स जो शुरू का पढ़ा हुआ वो आपके दिमाग में रह जाता है और जो लास्ट का पढ़ा रह जाता है बीच का याद नहीं रह पाता है। और यदि आप छोटे स्लॉट में पढ़ते हैं तो आपके फ्रीक्वेंट ब्रेक्स होते हैं और फ्रीक्वेंट ब्रेक में आपका शुरुआती भी याद रहेगा और एंड वाला भी याद रहेगा। इसका मतलब आपका मेमोरी पावर बढ़ता जाएगा, मेमोरी बैंक में ज्यादा चीजें अंदर जाती जाएंगी। Study in small slots means 100% focus. How can we come to know that we are 100% focused? Number 1, ask yourself. Number 2, read aloud. क्योंकि जब बोल के पढ़ते हो तब आपकी 4 सेंसेस एक साथ एक ही सेंटेंस को 4 टाइम्स आपके ब्रेन में रजिस्टर कर रही हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हो? रेड पेन एंड ब्लैक पेन हमेशा आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जब पढ़ो तो कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करो। मालूम नहीं है इतनी वास्ट स्टडीज में आपको दोबारा इतनी डिटेल स्टडी करने का समय मिलेगा भी या नहीं। और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और वहीं पर स्टिक करते जाओ जहां पर लॉन्ग आंसर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ब्रेन 7+-2 से ज्यादा और कम इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाता। इसलिए आपके कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स ही आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी बॉक्स में रजिस्टर होते हैं। ये जो स्मॉल स्टडी स्लॉट्स है उसको भी एंटरटेनिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यदि आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल अरोमा का यूज करते हो तो याद रखो इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट काइंड ऑफ अरोमा एक अलग सेंस से यदि रजिस्टर होता है तो अरोमा याद आते ही आपका ब्रेन उस सब्जेक्ट के लिए कंडीशन हो जाता है। आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अगेन ब्रेन कंडीशन हो जाता है कि यहाँ बैठा मतलब इस जगह के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ अल्फा म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मेडिटेशनल म्यूजिक होती है जो आपके ब्रेन को अल्फा स्टेट पर लेके जाती है, एंड इट्स वेरी गुड व्हाइल यू आर स्टडीइंग साइलेंटली एंड डूइंग मैथ्स, क्योंकि वो अल्फा स्टेट मीन्स द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट होता है। और उस समय यदि आप ये काम करते हैं तो आपकी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा होती है। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज ओनली द रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स। इसकी जगह चैप्टर कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद बुक को बंद करो, आइज क्लोज करो और एक के बाद स्टेप बाय स्टेप सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करो। इन केस याद नहीं आता तो बुक ओपन करके फिर से पढ़ाई कर लो, फिर क्लोज करो और फिर से रिकलेक्ट करो, बिकॉज रिकलेक्शन मीन्स द इंफॉर्मेशन इज गोइंग इन योर परमानेंट मेमोरी बॉक्स। और जब अपने डिसाइडेड शेड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद अपने को रिवॉर्ड करना, अपने को ट्रीट करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि जितना अपने आप को आप खुश रखोगे, चाहे अपनी फेवरेट चीज़ खाना है, चाहे अपना फेवरेट गेम देखना है या आधा घंटा मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना है, यदि आप इस तरह के रिवॉर्ड दोगे, क्योंकि याद रखना आपका खुश रहना ही आपके स्टेट को इंक्रीज करता है। एंड द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज एक्शन। इट मीन्स यदि आपके पास स्टेट क्लियर है, आपके पास स्ट्रेटजी क्लियर है, आउटकम क्लियर है, फिर भी आपने एक्शन ही नहीं लिया तो हर जो ड्रीम है वो यहाँ से आगे कभी नहीं बढ़ेगी। और उस बच्ची ने भी आज 35 डेज हो गए हैं पूरी तरह से स्टेज पे आउटकम और स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, तो आज उसका सेल्फ मोटिवेशन का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। और पूरे वीडियो को समझने में भी एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट यदि आपको कहीं भी मुश्किल आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं और आपके पास नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इस कोरोना लॉकडाउन टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करें। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बहुत सारे बच्चों की मदद करें।